Welcome students. So we were doing matter in our surroundings. So our last topic is evaporation. What is evaporation? It is the process of change of liquid into vapors. किस टेम्परेचर पे? At any temperature below its boiling point. Below its boiling point is evaporation. What is evaporation? The process of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is evaporation. As you know that particles of matter are continuously moving. Because they are continuously moving, so different particles have different type of kinetic energy, and they have different type of kinetic energy which break the forces of attraction and changes its state. So what is the difference between evaporation and boiling? Okay, first is evaporation. It is a process of change of liquid into gas at any temperature. किसी भी टेम्परेचर पे होगा तब क्या होगा? इवेपोरेशन. What about boiling? It is the change of state from liquid to gas at boiling point. अगर boiling point पे होगा state change तब उसको हम बोलेंगे boiling. अगर boiling point से कम पे होगा state change, मतलब liquid से vapors में convert होंगे, but below its boiling point then evaporation. At boiling point is called boiling. Okay. Second is it is a surface phenomena. It is a surface phenomena. What is surface phenomena? As I already told that different types of particles have different type of kinetic energy, because particles of matter are continuously moving, they are never at rest. So take an example of container having water in it. तो जो पार्टिकल सरफेस पे है इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है. हमें और हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती. इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके, सो इट इज अ सरफेस फिनोमिना. व्हाई? बिकॉज सरफेस पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी, एनफ काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. सो इट इज अ सरफेस फिनोमिना. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा हीट. इट टेक्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग. What about boiling? It is a bulk phenomena. It is a bulk phenomena. In this, every particle, take an example of a beaker having water. Every particle is involved in conversion. चाहे वो कोई भी particle हो, surface का हो या बल्क में हो पार्टिकल. तो every particle is involved in conversion, so it is a bulk phenomenon. And evaporation causes cooling. जो evaporation है ये क्या करता है? It causes cooling. Okay, the difference between evaporation and boiling is the change of state from liquid to gas below its boiling point, then it is known as evaporation. If change of state from liquid to gas at boiling point is known as boiling. Okay, now what are the factors on which rate of evaporation depends? First is surface area. Surface area. More the surface area, more is the rate of evaporation. Take an example. If we put hot tea in a cup or a saucer. आप एक टी लेते हो, एक हॉट टी और मिल्क आप कप में लेते हो या सॉसर में लेते हो, मतलब प्लेट में लेते हो. तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इट हैज मोर सरफेस एरिया, सो इट्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर. सो इफ मोर द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल. वी पुट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप. वी पुट देम, वी स्प्रेड देम आउट, है ना. अगर हम कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए, वी स्प्रेड देम आउट. ऐसा क्यों? कपड़ों को हम स्प्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, तो जो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इट इंक्रीजेस. सो विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने पार्टिकल्स के पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी. जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी जल्दी वो फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगा और अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा. ओके,
higher is the temperature, more is the rate of evaporation, or more is the temperature, more is the rate of evaporation. Why so? Because particles have kinetic energy to overcome the forces of attraction and get converted into vapor state. Okay. Third is humidity. What is humidity? It is the water molecules present in air. जो एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. अगर एयर के पास पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो वो इवेपोरेट होने के बाद जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स उसके पास आएंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा. मोर इज द ह्यूमिडिटी, लेसर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? इट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर. पहले ही एयर के पास वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, वो और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि वो और एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है इट डिक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी, विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन विंड स्पीड. इंक्रीज इन विंड स्पीड. क्लोथ्स ड्राइंग अप फास्टर इफ विंड स्पीड इज हाई. क्लोथ्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं इफ विंड स्पीड इज हाई. वाई सो? बिकॉज इट टेक्स अवे द वाटर मॉलिक्यूल्स विद इट, है ना. जो एयर है वो क्या करती है, विंड क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ही ले जाती है. इट टेक्स अवे द वाटर मॉलिक्यूल्स विद इट. तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा. इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन. लास्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड. Different liquids have different type of nature. Lesser the boiling point, then more is the rate of evaporation. Why so? अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, lesser is the boiling point, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, किसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर. पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है. बॉइलिंग पॉइंट कम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, उतनी जल्दी जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होएगा, मतलब वेपर स्टेट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है, उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग? First is why water kept in an earthen pot become cold during summer. Why so? earthen pot के अंदर अगर हम water रखते हैं वो समर में बहुत जल्दी कूल हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? देखो, जो एक earthen pot है it has tiny pores over the surface. उसके सरफेस पे क्या है, टाइनी पोर्स. अब क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर टाइनी पोर्स हैं, जब अब इसके अंदर वाटर डालेंगे, ठीक, जब इस अर्दन पॉट के अंदर हम वाटर डालेंगे तो इट सीप्स इनटू द पोर्स. ये जो पोर्स है उसके सरफेस के ऊपर वाटर इसके अंदर सीप कर जाएगा इस पोर्स के अंदर. एंड इट टेक्स हीट फ्रॉम द वाटर एंड फ्रॉम द अर्दन पॉट एंड इवेपोरेट. अगर लिक्विड के पास हीट होगी वो क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा. ऐसे ही जब ये जो वाटर है इस पोर्स के अंदर चला जाएगा वो क्या करेगा, सराउंडिंग से उसको हीट मिल रही है तो वो इवेपोरेट हो जाएगा. क्योंकि ये जो वाटर है सराउंडिंग से हीट मिलने के बाद वो इवेपोरेट हो गया, तब क्या होगा, इसके अंदर की जो हीट कंटेंट है वो कम होगी. इट रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ हीट कंटेंट. जो हीट वाटर के अंदर थी वो कम होगी. इट लोअर्स द हीट कंटेंट इन वाटर, देयरफॉर वाटर गेट्स बिकम कूल. क्योंकि अब जो अंदर की हीट है वो कम हो चुकी है, इसलिए क्योंकि उसने वाटर हीट कंटेंट जो थी वो कम होगी इवेपोरेट होने से, तो ये क्या होगा, वाटर बिकम कूल ड्यूरिंग समर. नेक्स्ट इज Why does desert cooler cool better on hot dry day? जो कूलर है हॉट ड्राई डे पे वो हमें कूलिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो भी सेम प्रोसेस है. क्योंकि मैंने आपको बोला इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. इस केस में कैसे पॉसिबल है, जो डेजर्ट कूलर है इसके अंदर भी वाटर होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया जो वाटर है जब वो हीट लेगा वो क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा. तो जो डेजर्ट कूलर के अंदर हम वाटर पोर करेंगे इट टेक्स हीट फ्रॉम द डेजर्ट कूलर एंड फ्रॉम द वाटर, एंड जब पानी के पास हीट आएगी, वाटर के पास हीट आएगी, वो क्या करेगा, इवेपोरेट. तो इट टेक्स हीट फ्रॉम डेजर्ट कूलर एंड फ्रॉम वाटर and evaporate, and when it evaporate it lowers the heat content. क्या होगा, इसके अंदर जो heat content होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. and when it lowers the heat content in desert cooler, the circulating water and the pads at the windows, जो windows के ऊपर pads लगे हुए हैं और जो इसके पास circulating water है वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास जो heat content है वो कम हो चुका. ठीक,
हीट कंटेंट कम होने से क्या होगा, जो इनकमिंग एयर है इट बिकम कूल, दैट्स व्हाई डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, जब जो इनकमिंग एयर होगी वो कूल होगी। Third is, why does our palm feel cold when we put some acetone or perfume on it? अगर हम अपनी पाम पे कुछ एसीटोन और परफ्यूम रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारा पाम इतना कोल्ड फील क्यों करता है, इतना ठंडा क्यों हो जाता है? दिस इज बिकॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन वाटर टेक्स हीट इट डेफिनेटली इवेपोरेट, है ना। तो जब हमारे पाम के ऊपर कोई एसीटोन रखेंगे, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है। व्हाट इज वॉलेटाइल लिक्विड? जो इजीली इवेपोरेट कर जाता है। अब क्योंकि हमारी पाम के ऊपर जो लिक्विड है वो वॉलेटाइल है, एसीटोन भी और परफ्यूम भी, वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। क्योंकि वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा तो हीट कंटेंट जो हमारे पाम का था, उसने हमारी पाम से हीट ली और इवेपोरेट हो गया। अब हीट कंटेंट जो हमारी पाम का है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अब इट रिजल्ट्स इन लोअरिंग इन हीट कंटेंट, सो इट प्रोवाइड्स कूलिंग सेंसेशन, तो हमें कूलिंग सेंसेशन होगी। लास्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वियर इन समर? समर में हमें किस तरह के क्लोथ्स वियर करने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स। व्हाई सो? Cotton clothes are good absorber of heat. Cotton is good absorber of water and sweat, because cotton is good absorber of water and sweat, so हम easily sweat को absorb कर लेगा। और when it exposed to atmosphere, जब वो atmosphere पे हम expose उसको करेंगे तो वो क्या होगा, easy evaporate हो जाएगा easily, right? अब क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो इजीली इवेपोरेट करेगा। पहले तो वो कॉटन क्लॉथ्स क्या करती हैं, वाटर को और स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद व्हेन इट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इट इजीली इवेपोरेट, जब वो इवेपोरेट होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, कूलिंग सेंसेशन। व्हाई सो? क्योंकि हीट कंटेंट जो है वो कम हो चुका, इसलिए हमें कॉटन क्लॉथ्स वियर करने चाहिए जो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, कूलिंग सेंसेशन। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, इवेपोरेशन।